اور پوری دنیا کی سائنس کی ریسرچ آج کل نہیں، سال ہر سال سے طب ساری دنیا کی سائنس جب تحقیقات کے بعد اپنے نتیجے کو کھولتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو میرے آقا صدیوں پہلے فرما گئے تھے، اور حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان اس سے پہلے ہی تھا۔ ساری دنیا کی سائنس جب دیکھی جائے، یہ میری السلام علیکم، میں اوپر آؤں گا الرحیم۔ میرے بہت قابل احترام میرے محسن، میرے رہبر حکیم طارق صاحب، ڈاکٹر اجرائے صاحب، سردار تعلق سنگھ صاحب، گل فراز صاحب، چودھری سومی گل صاحب، عامر سلامت صاحب، خادم حسین صاحب، راجہ حسن اختر صاحب، حکیم طارق صاحب کے دونوں شہزادے ماشاءاللہ، تمام خواتین و حضرات السلام علیکم۔ میں حکیم صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ اپنا قیمتی وقت نکال کے یہاں پر آئے، لیکن میں آپ سے درخواست کروں گا مجھے، میرے بیٹے کو، میری فیملی کو، ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ کی دعاؤں کی، آپ کی نظر کی ہمیں بہت ضرورت ہے، پاکستان کو بہت ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو سلامت رکھے۔ یہ ملک رہے گا تو یہاں پر سارے نظام چلیں گے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ اب فلور آپ کا ہے، اب آپ نے بولنا ہے اور ہم نے سننا ہے۔ میں آپ کا ایک دفعہ، آپ کی ٹیم کا پھر بہت شکر گزار ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر، جو کہ سارا سیرا راجہ حسن اختر صاحب کو جاتا ہے آپ کو یہاں لانے میں، کہ آپ یہاں پر تشریف لائیں۔ بہت شکریہ۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ لأہلہا۔ میرے جتنے بھی مخلصین ہیں یہاں تشریف فرما ہیں، سر فہرست کاشف انور صاحب ہیں، اور راجہ حسن صاحب ہیں، جناب خادم حسین صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی میرے مخلصین ہیں۔ ایک مختصر سی بات جس کی کوشش کروں گا کہ پوری دنیا کی سائنسی تحقیقات اور پوری دنیا کی سائنس کی ریسرچ آج کل نہیں، سال ہر سال سے طب نبوی پہ بہت زیادہ تحقیق کر رہی ہے، ریسرچ کر رہی ہے طب نبوی پہ۔ مجھے آج کا موضوع یہی دیا گیا، تھوڑی سی اس پہ گفتگو کروں گا۔ ساری دنیا کی سائنس جب تحقیقات کے بعد اپنے نتیجے کو کھولتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو میرے آقا صدیوں پہلے فرما گئے تھے، اور حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان اس سے پہلے ہی تھا۔ ساری دنیا کی سائنس جب دیکھی جائے، یہ میری کتابیں ہیں، میں محترم کاشف انور صاحب کی چیمبر کی لائبریری کے لیے لایا ہوں۔ یہ تقریباً 2400 صفحات کے والیم ہیں طب نبوی پہ، اور تقریباً 1750 صفحات ہیں سنت نبوی پہ، اور یہ نباتات ہیں قرآن پاک کی۔ قرآن پاک نے جن نباتات کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کو ابتدائی چھاپنے کا اعزاز میں جناب گل فراز صاحب اردو بازار کے بڑے تاجر ہیں، تشریف فرما ہیں، اللہ نے انہیں اعزاز دیا ابتدائی۔ میں ایک چھوٹا سا نقطہ عرض کروں گا۔ قرآن پاک نے 2 چیزوں کی قسم کھائی ہے، دنیا کی کسی درخت کی قسم نہیں کھائی، دنیا کی کسی پھل کی قسم نہیں کھائی، وہ ہے والتین والزیتون۔ 3 انجیر ہے اور زیتون، آپ جانتے ہیں۔ اس کی قسم کیوں کھائی؟ قرآن نے اس کی قسم کھائی ہے باقاعدہ۔ مجھے قسم ہے انجیر کی، اللہ کہتے ہیں، اور مجھے قسم ہے زیتون کی۔
उसकी एक वजह है। मैं थोड़े से इंजीर के फ़ायदे अर्ज़ करूँगा। जिसको खून की कमी हो और बहुत ज़्यादा, हामला को खून की कमी हो जाती है, या हादसात के बाद, या किसी बीमारी के बाद, या किसी ऐसी तकलीफ़ के बाद जिसमें खून की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है आखिरी दर्जे में, आप 3 इंजीर और सेब का सिरका देसी हो, 3 इंजीर ले लें और 2 चम्मच सेब का सिरका ले लें। इंजीर टुकड़े कर लें, किसी सिल्वर के कप में ना हो, शीशे या चीनी के कप में। इसको रात को भिगो के रखें। सुबह उठ के ये इंजीर भी खा लें और जैतून जो है और साथ सिरका भी पी लें। ये तजर्बात से अर्ज़ कर रहा हूँ और मुसलसल तजर्बात से। उसकी एक वजह है, जितने लोग मेरे नेट की दुनिया में, मैगज़ीन की दुनिया में, तस्बीह खाने की दुनिया में आते हैं, तो फिर उतने लोगों के नताइज भी आते हैं और वो लोग बताते हैं कि हमें इससे कितना फ़ायदा होगा। ये एक खुराक समझ लें कि 1 लीटर खून बनाती है या 1 पाउंड खून बनाती है। एक खुराक, साले खून, साफ सुथरा खून जिसमें कोई बीमारी नहीं। खून की कमी के लिए एक चीज़, कोरोना में इसका तजर्बा बहुत ज़्यादा हुआ इंजीर का। जिनके कोरोना फेफड़ों में चला गया और वो वेंटिलेटर पे या ऑक्सीजन में या जैसे, उनको जब इंजीर खिलाया गया, इंजीर उबाल के पिलाया गया, इंजीर वैसे खाया गया, फेफड़ों का कोई मसला है, पुरानी खांसी है, दमा है और दमा एलर्जी वाला है, जिसको पोलन एलर्जी भी कहते हैं, या एलर्जी के मौसम के बदलने से, अलमारी खुलने से, संदूक खुलने से, किसी खुशबू से पुरानी एलर्जी हो, उसके लिए इंजीर बहुत ताकतवर चीज़ है कि अल्लाह ने कसम खाई है। पुरानी कब्ज़ के लिए आप 3 दाने हर खुराक के बाद, हर खाने के बाद इंजीर खा लें। इंजीर की थोड़ी सी मैं पहचान अर्ज़ करूँगा। इंजीर की, जितना इंजीर मैला होता जाएगा उतना असली होता जाएगा, जितना खूबसूरत होता जाएगा उतना केमिकल का धुला हुआ होता जाएगा। 100 की किशमिश भी ऐसी ही, और खुबानी खुश्क वो भी जितनी शफाफ होती जाएगी, वो आपके देखने में हसीन और जमील होगी, लेकिन उसकी कुव्वतें ख़त्म होती जाएंगी। वो केमिकल धो के उसकी अंदर की ताकत को ख़त्म कर देंगे। तो इसलिए इंजीर सादा हो, देसी हो, आप खाने के बाद। अच्छा, ये मोटापे का इलाज है, पेट बढ़ने का इलाज है। इंजीर बहुत ज़बरदस्त इलाज है मोटापे का, पेट बढ़ने का। मैं सिर्फ इस वक्त इंजीर को बयान कर रहा हूँ कि ये किस तरह ज़बरदस्त इलाज है। नाक की हड्डी बढ़ना, नाक की एलर्जी, छींकों का तूफान, इसका कहवा पिएं और उसको चबा के खा लें। इंजीर रात को भिगो दें, सुबह उठ के खा लें। सख्त सर्दी है गर्म करके, सर्दी नहीं ताज़ा, आप इसको इस्तेमाल करें। इंजीर, अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने अपने कुरान में इसकी कसम उठाई है। ऐसे लोग जिनकी कहीं रसोली ट्यूमर है और उसके बारे में अमूमन यह कहा जाता है कि उसकी जो है सर्जरी, ऑपरेशन होगा, उसके लिए इंजीर को मैंने बहुत मुफीद पाया। और वो कहीं भी है, ख़वातीन के कहीं भी, आप जिस्म के कहीं हिस्से भी है, इंजीर को मैंने बहुत मुफीद पाया। मैं इंजीर के फ़ायदे फिर से दोहराना शुरू करूँगा। खून की कमी के लिए, नाक की एलर्जी, नाक की हड्डी बढ़ने के लिए, फेफड़ों का कोई मसला है और उसमें खांसी, नज़ला, मौसमी तब्दीली, या कुछ ऐसी ज़िंदगी जिसमें बाज़ चीज़ों के पीने से फेफड़े मुतासिर होते हैं और बहुत ज़्यादा वो ज़िंदगी में वो चीज़ पी जाए, उसकी वजह से फेफड़े बहुत ताकतवर होते हैं, सेहतमंद होते हैं। इंजीर को अगर फ़ायदा लेना चाहते हैं, खुश्क कम इस्तेमाल करें, खुश्क, और भिगो के ज़्यादा इस्तेमाल करें। अगर खुश्क भी लें तो इसके कोई मुज़िर असरात, जिसे साइड इफ़ेक्ट्स कहते हैं, नहीं हैं इंजीर के। अगली बात मैंने कही, कहीं भी खून में चर्बी है जिसको आप यूरिया, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रोल, फलां क्रिएटिनिन, कहीं भी खून में ऐसी चीज़ें हैं जो जिस्म के लिए नुकसानदेह हैं, उसमें इंजीर का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। और पेट बढ़ने के लिए, चर्बी के लिए। आखिरी चीज़ जो इंजीर का फ़ायदा बताऊंगा, कब्ज़ के लिए, बवासीर, जोड़ों के दर्दों के लिए मैंने बहुत मुफीद पाया। इंजीर दरअसल
इंजीर दरअसल वो ग़िज़ा है जो ज़िंदगी की सेहत है और ये जन्नत की ग़िज़ा है। इंजीर जन्नत में हो, जैतून जन्नत में हो। दूसरी चीज़ है जैतून। इस वक्त जैतून के दरख्त, कुछ मुल्कों में जाना हुआ तो जैतून बहुत ज़्यादा वहाँ लगाया जा रहा है, इतना ज़्यादा लगाया जा रहा है जिसकी हद नहीं है, बहुत ज़्यादा। मैं अभी उर्दन गया तो मुझे परेशानी हुई कि उर्दन में तो वीज़ा बहुत मुश्किल है, तो मैं यहाँ खड़ा था, ये दरमियान में नहर थी एक, जैसी हमारी ये कैनाल नहर है हमारी, ये बॉर्डर इसराइल का, ये नहर थी सामने, बिल्कुल नहर के सामने। मुझसे पहले यहाँ का वो एक क्रिश्चियन मसीही बिरादरी का एक ग्रुप था, वो भी वहाँ से होके आ रहा था, मुझे मिला, यहीं लाहौर के हजरात हैं। अच्छा, वहाँ मैंने देखा कि इस इसराइल में और उर्दन में बहुत ज़्यादा इंजीर लगाया जा रहा। कई मुल्कों में मैंने देखा इंजीर बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। उसकी एक वजह है, पूरी दुनिया वापस फितरत की तरफ लौट रही है, नेचर की तरफ लौट रही है। हमने उसको नाम ऑर्गेनिक का दिया है, लेकिन वापस फितरत की तरफ सफ़र है हमारा। इंजीर और जैतून। अब जैतून का एक टोटका बताता हूँ। 2 चम्मच इसबगोल का छिलका, 1 चम्मच शहद और 2 चम्मच जो है वो जैतून के तेल के, ये मिला के आप सुबह नहार मुँह इस्तेमाल करें। जो शख्स ये चाहता है कि मौसमी तब्दीली हो या जिस्मानी तब्दीली हो, उम्र के ढलने के एतबार से, दिल के दौरे, पट्ठों का खिंचाव, जहनी टेंशन, असाबी तनाव या कोई ऐसी लाइलाज बीमारी मुझे ना लगे, वो इस टोटके को सिर्फ दिन में 1 दफ़ा इस्तेमाल कर ले। अच्छा, इस टोटके के साथ मैंने एक थोड़ी सी तब्दीली बताता हूँ, एक छोटी सी तब्दीली। 2 चम्मच इसबगोल, 2 चम्मच जैतून, 1 चुटकी कलवंजी। 25-25 किलो लोगों के वज़न कम हुए हैं, किलो, पाउंड नहीं। मोटापे का इलाज है, पेट बढ़ने का इलाज है। 2 चम्मच इसबगोल का छिलका और 2 चम्मच जैतून का तेल, 1 चुटकी कलवंजी, चुटकी सिर्फ, और चुटकी 2 उंगलियों वाली, 3 उंगलियों वाली नहीं, 2 उंगलियों में थोड़ा आता है। ये सुबह नहार मुँह अगर आप ले लें, पानी के साथ ले लें, किसी चीज़ के साथ ले लें, और इसको अपने मामूलात में रखें। आप गौर से देखें, इसके कोई साइड इफेक्ट आपको ज़िंदगी में कहीं नज़र नहीं आएंगे। और अगर बाज़ औक़ात बाज़ लोगों को जैतून का तेल गर्म महसूस होता है, इसबगोल का छिलका उस गर्मी को चूस लेता है और उसको मोतदिल बना देता है। इसबगोल का छिलका छोटा सा टोटका है, छोटा सा टोटका है। मैंने इसके बड़े तजर्बात देखे, इस छोटे से टोटके के बहुत नताइज देखे। एक सफ़र में था तो वहाँ एक साहब थे, उनको खराटे आते थे और इतने ज़्यादा आते थे, वो खराटे करते करते फिर उनके बाद उनका खराटों से वो सीना भर जाता था, फटते थे। इधर बाजू मारते थे, इधर बाजू मारते थे, इधर साथ सोया हुआ उठ जाता था, इधर उठ जाता था, फिर थोड़ी सी करवट लेके फिर सो जाते थे। फिर 3-4 मिनट के बाद फिर धमाका होता था और हर बंदा उनसे दूर होता था, परेशान थे। मैंने कहा गरारियों को तेल दें, है ना, घर के दरवाजे ना आप हों तो चूं-चां करते हों तो उसके कब्जों को तेल दे दें तो वो दरवाजे ठीक हो जाते हैं। मैंने तेल लिया और मैं एक ऐसे सहराई सफ़र में था जहां कोई चीज़ मयस्सर नहीं थी। एक छोटी सी सिल्वर की कटोरी में तेल लिया, उसको हल्का गर्म किया, उसको यूं टेढ़ा किया, टेढ़ा करके उसके नाक में 3-4 कतरे इधर डाले, 3-4 कतरे डाले, हल्की सी जलन महसूस हुई। वो रात हैरत अंगेज़ तौर पे खुद भी सुकून से सोया, दूसरों को भी सुकून से सोने दिया। खुराटों का इलाज है, नाक की हड्डी बढ़ने का इलाज है। ये नाक में तेल डालना, जैतून का तेल नाक में डालना। एक चीज़ और है कि पहले दौर में, अब भी बाज़ गाँव देहात में कानों में देसी घी डाला जाता था। कानों में देसी घी गाय का बाकायदा डाल के पड़े रहते थे और वो घुलता था और कान उसको जज्ब कर लेता था। कान में देसी घी डाला जाता था एक, या कान में सरसों का तेल या जैतून का तेल। कान, अच्छा, इससे पहले हमारी जो कान की साइंस थी वो कहती थी कान में कोई ऐसी चीज़ ना डालें ऑयली, तेल नुमा, जो जिस्म के लिए बहुत नुकसानदेह है। अब कहते हैं हमारे कान की मैल, जिसको विक्स वगैरह,
वो ख़त्म हो रही है हमारी इस वक्त इन्वायरमेंट, हमारा माहौल, हमारी ताबकारियाँ और ये वगैरह वगैरह। अब काम के लिए ज़रूरी है। जैसे इससे पहले एक सुन्नत नबवी है, तिब्ब नबवी का एक टोटका है कि सुरमे के बारे में कहा जाता था कि सुरमे में लेड है, सीसा है, आँख के लिए नुकसानदेह है। मेरे आका फरमा दें कि सुन्नत आँख की ज़िंदगी है। साइंस कहे, आखिर साइंस लौट आई और कहने लगी कि इस पे एंटी लेड भी है। हत्ता कि 1941 से 45 के दरमियान में जो जंग अजीम दोम हुई, उस जंग अजीम दोम में हिरोशिमा नागासाकी पे जो एटम बम का हमला किया गया और हर चीज़ पिघल गई, वहाँ के एक साइंसदान ने रिसर्च की, तहकीकात के बाद ये बात कही कि काश के हमारे हर जापानी के बदन के ऊपर सुरमा मला हुआ होता। ये सुरमा एटम का भी इलाज है, ताबकारी का भी इलाज है, और हमारी हवाओं फजाओं में जो इस वक्त ताबकारियाँ फिर रही हैं उसका सबसे ज़्यादा यही तरियाक है, यही इलाज है। क्यों? हमारे जिस्म का सबसे नाजुक तरीन हिस्सा आँख का पर्दा है, सबसे नाजुक। कहीं चोट लगे बंदा, लेकिन आँख का पर्दा है। और अजीब बात बताऊं, किताबों में यहाँ तक आया है कि अल्लाह पाक ने इस आँख के ऊपर 9 फरिश्ते लगाए हुए हैं जो इसकी हिफाजत करते हैं। आपने देखा होगा लोगों को यहाँ चोट होगी, यहाँ चोट होगी, बड़ी बड़ी चोटें होंगी, अल्लाह इसको बचा देते हैं। 9 फरिश्ते सिर्फ आँख की हिफाजत करते हैं, 9 फरिश्ते सिर्फ आँख की हिफाजत करते हैं। सुरमा हमारी ज़िंदगी है। मैं इस सब अपना जैतून पे बात करते करते सुरमे पे आया हूँ। जैतून की बात मेरी मुकम्मल नहीं हुई, मुकम्मल करता हूँ। सुरमा हमारी ज़िंदगी है और सुरमे को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। रात सोते वक्त सुरमा। अच्छा, आप सुरमा हैरान होंगे। तो भी बस वीडियो आपने देखी, जिस तरह जैसे आपने हमें बताया वैसे ही करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपके रिज़्क़ दौलत में बेइंतहा इजाफा होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। दीजिए इजाज़त, अल्लाह।